ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रस्तुत है उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। कुमाऊं से गढ़वाल तक, पौड़ी से हरिद्वार तक, उत्तराखंड के अलग अलग खेल स्थलों से 38वें राष्ट्रीय खेलों की हर खबर, हर जीत और हर हार की जानकारी लेकर उपस्थित हूं मैं मुबीन अहमद खान। नमस्कार। रोज की तरह आज का दिन भी कुछ के लिए खुशियों तो कईयों के लिए गम समेटे रहा, लेकिन यही तो है खेलों की खूबसूरती, जहां हर मुकाबले के बाद प्रतिद्वंदी गले मिलते हैं और पोंछते हैं एक दूसरे के आंसू, होते हैं तैयार एक नए मुकाबले के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए चलते हैं रजत जयंती खेल परिसर देहरादून में, जहां बहुखेलीय स्पर्धाओं की जान एथलेटिक्स के मुकाबलों पर नजर रखी हमारे साथी तेंजिन तीवा ने। Today the Kanga Athletic Ground in Dehradun was buzzing with excitement as athletes from various states participated in a thrilling day of competition at the 30th National Games. The atmosphere was electric, with the crowd roaring in support as their local athletes fought for glory across a variety of events. The day began with a captivating women's 3,000-meter steeplechase event. Ankita from the host state Uttarakhand emerged as the champion, clinching the gold in a thrilling race. ये मेरी सेकंड रेस है और मैंने इसमें पर्सनल बेस्ट किया और प्राउड फील हो रहा है। Manju Yadav from Madhya Pradesh secured the silver, while Ripi Bal from Uttar Pradesh took home the bronze. In the men's 3,000-meter steeplechase, Sumit Kumar and Rohit Verma of SSCP displayed incredible endurance and strategy to win the gold and silver medal. This is my first services meet and I'm very thankful. It's a really proud moment for me. While Shankar Lal Swami of Haryana had to settle for the silver. The women's hammer throw event was dominated by Uttar Pradesh girls. Anushka Yadav won the gold, Danya Chaudhary silver and Nandini bronze. In the men's shot put, Dajinder Dor and Prab Kirbal Singh of Punjab showed outstanding technique and strength, claiming the gold and bronze. 2-3 वीक ही हुए मुझे थ्रो स्टार्ट किए हुए, उस हिसाब से ठीक है, नॉट बैड डिस्टेंस. While Samardeep Gill of Madhya Pradesh bagged the silver in a highly competitive event. In the men's pole vault, Deep Meena of Madhya Pradesh broke the previous national record by clearing 5.32 meters. The women's 4x400 meter relay event was fiercely contested. The Punjab relay team emerged victorious, claiming the gold. मुझे बहुत अच्छा लगा नेशनल गेम में मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया और मेरा गोल्ड आया. The Karnataka team secured the silver, while Haryana took home the bronze in this high-paced race. In the men's 4x400 meter relay, Tamil Nadu emerged as the gold medalist. I'm very happy that this is my first senior. Uttarakhand earned silver, while SSCB clinched the bronze. This event showcased the multidisciplinary athletic prowess of the participants and set the stage for further competitions in the coming days. 7 ताल में माउंटेन बाइकिंग के मुकाबलों में तेजी, संतुलन और ऊर्जा का बेहतरीन संगम देखने को मिला। रिपोर्ट के साथ हैं कृष्णदेव शुक्ल और कविंद्र कुमार। 7 ताल के गरुड़ ताल में आज माउंटेन टेरेन बाइक साइकिलिंग में 2 स्वर्ण दांव पर लगे थे। कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं चढ़ाई तो कहीं तेज ढलान, कहीं गहरे गड्ढे तो कहीं धूल भरी डगर और इसी रास्ते पर सबसे बेहतर करने की होड़। पहली प्रतियोगिता थी महिलाओं के लिए लगभग 12 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री टाइम ट्रायल, जिसमें महाराष्ट्र की प्रणीता प्रफुल्ल सोमन ने स्वर्ण हासिल किया। बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशंस आज मेरे लिए थोड़ा टफ था रेस करना, बट इट वॉज हार्ड फाइट विद स्टार, सो आई हैड फन रेसिंग हियर और ट्रैक भी बहुत अच्छा था, मतलब शॉर्ट था बट आई फेल्ट इट फास्ट एंड यस आई फेल्ट सम चैलेंजेस बट इट वॉज ऑसम रेसिंग हियर। कर्नाटक की स्टार नार्जरी ने 46 मिनट और 44.411 सेकंड का समय निकालकर रजत जीता। I think it was a good race. I pushed a lot. I gave my best, and getting silver is like okay. I'll try my best for tomorrow's race. I'm ready to go for gold. Track इतना टेक्निकल नहीं है, राइडेबल है, फास्ट कोर्स है, and I enjoyed it. कांस्य उत्तराखंड की सुनीता श्रेष्ठ को मिला। अच्छा लग रहे है मेडल के लिए, एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि ट्रेनिंग इनफ नहीं था ये इवेंट के लिए। कोच ने कहा कि अच्छे से करना बस, बट मेडल है तो अच्छा लग रहा है। वहीं पुरुष मुकाबलों में 14 किलोमीटर के क्रॉस कंट्री टाइम ट्रायल में सर्विसेज के खुशीमन घरती ने सोना हासिल किया। टेक्निकल रूट में सब इंक्लूड था, लाइक क्लाइंब, ग्रेजुअल, स्ट्रेट एंड टेक्निकल डाउनहिल। ट्रैक तो माउंटेन बाइक के हिसाब से होना चाहिए, वो सब था। ऑल द कॉम्पिटिटर्स आर सो हाईली कॉम्पिटिटेड विथ ईच अदर, सो इट्स टोटली इंटेंस कॉम्पिटिशन था। रजत मणिपुर के खरीक सिंह एडोनिस को मिला। ट्रैक बढ़िया था, बहुत डस्टी स्लिपरी कोर्स था, मजा आया बहुत। कॉम्पिटिशन था टफ, मुझे पता था हमारा आर्मी टीम वाले बहुत स्ट्रांग होंगे इस बार, लाइक ऑलवेज, सो था टफ, तो अगली बार देखते हैं। कांस्य पदक सर्विसेज के ही कमलेश राणा ने जीता। भी अच्छा लगा कि टॉप 3 चलो आगे, जैसा कि लास्ट टाइम पीक पे
पे नहीं था ना, तो थोड़ा इंजरी के कारण परफॉर्मेंस पीक पे नहीं थी। सोचा नहीं था कि नेशनल गेम्स नहीं जल्दी आ जाएगा, क्योंकि पहले ये गेम हुआ नहीं करता था मतलब नेशनल गेम्स में। कल एक बार फिर अपना जुनून, जोश और कौशल के साथ राइडर्स सोने की रेस में अपनी साइकिलें चलाएंगे। लय और संतुलन के खेल जिम्नास्टिक्स में कौन जीता और कौन हारा, नजर रखी खुर्शीद अहमद ने। The rhythmic gymnastics competition was held throughout the day, featuring individual and group performances in various apparatus categories. The event brought together talented gymnasts from different states, showcasing their grace, flexibility, and coordination in a highly competitive environment. The day began with the qualification rounds, where gymnasts competed in 4 apparatus events: hoop, ball, clubs, and ribbon. Each routine was judged based on technical execution, artistry, and difficulty level. The audience witnessed breathtaking performances, with gymnasts demonstrating incredible control and synchronization. As they were moving from one apparatus to the other, we tried to talk with some gymnasts. Here is Rakshita Solanki of Rajasthan. I'm participating in the criteria of rhythmic gymnastics. I have just done with the hoop apparatus, and now we'll be having ball, and I am in the B group and my number is 8. From last 2 months we have been working hard for it, because last month we had our SGFI nationals at West Bengal. We were busy at that, and directly coming and competing in that was a bit difficult, like traveling, but still we cooperated and now we are participating in this. Jharna Borwa is the only gymnast participating in this national games from Assam. मैं satisfied हूँ because मैं इकलौती हूँ असम से, और एक्सपीरियंस बढ़ता है ना ऐसे गेम करने से। रुद्रपुर में स्कीट शूटिंग की प्रतियोगिताएं जारी हैं। रिपोर्ट लेकर आई हैं प्रतिष्ठा जैन। शूटिंग के ट्रैप और स्कीट मुकाबले रुद्रपुर में चल रहे हैं। ट्रैप शूटिंग के मुकाबले कल यहां संपन्न हुए और आज से स्कीट शूटिंग का शुभारंभ हुआ है। क्या होती है स्कीट शूटिंग, आइए जानते हैं चीफ ज्यूरी अमरजंग सिंह से। स्कीट इवेंट होता है कि शूटिंग रेंज पे 2 घर बने होते हैं, एक को लो हाउस एक को हाई हाउस कहते हैं। उनमें से बर्ड निकलती हैं, जो उनसे टारगेट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है एक होती है, और शूटर टारगेट के आले दुआले घूमता है सेमी सर्कल में और उनको तोड़ता है, उसको स्कीट कहते हैं। आज उसकी ट्रेनिंग थी, मैच कल से शुरू है। शूटिंग रेंज बहुत अच्छी है, बैकड्रॉप अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो प्रदर्शन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आज यहाँ इक्विपमेंट टेस्टिंग की गई और कल इसी शूटिंग रेंज पर बेहतरीन शूटर्स अपना दमखम दिखाएंगे। नेटबॉल में क्या कुछ हुआ, जानकारी के साथ हैं विघ्नेश्वर। Here for the game of netball at Kanchenjunga Hall, Maharana Pratap Sports College. It was an eventful day as the Fast 5 format games league matches happened. In total, 8 teams, each in men and women's category, were divided into 2 groups as they follow the Robin round format, and those securing the top 2 positions will enter the semi-finals. When asked about the game's format with the director of competition, Mr. Ashok, अभी यहाँ पे जो फास्ट 5 का इवेंट चला है, ये इवेंट जो है 10 और 11 तारीख तक का है। इसके बाद आपका मिक्स नेटबॉल स्टार्ट होगा। तो फास्ट 5 में जो आपके जो हैं 10 प्लेयर खेलते हैं, उसमें प्लेइंग में 5 प्लेयर आते हैं। As the league matches are set to end by tomorrow afternoon, teams are playing their best to enter the semi-finals. हरिद्वार के वीके हॉकी स्टेडियम में हॉकी के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जहां टीमों ने बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर और डिफेंस का प्रदर्शन किया। मनीष भट्टाचार्य जी ने हर मूव पर नजदीकी नजर रखी। हरिद्वार में हॉकी टूर्नामेंट का आज वो दौर आ चुका था जब खिलाड़ियों की नजर गोल पोस्ट से ज्यादा अंक तालिका पर होती है। आज पूल ए के महिलाओं के पहले लीग मैच में अंक तालिका ने वाकई चकरा दिया। उड़ीसा को 3-2 से हराकर हरियाणा ने पश्चिम बंगाल को बराबर अंक लेने के बावजूद बाहर धकेला और सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये कमाल टूर्नामेंट में उनके अब तक के सर्वाधिक फील्ड गोल का था, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ गई। कप्तान रानी रामपाल, आगे के मैचेस के लिए हमें और ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम अपनी थोड़ी डिफेंडिंग पे ध्यान दें। दूसरा मैच पूल बी का था और परिणामों से अप्रभावित था। 7 अंकों के साथ पूल बी की दूसरी टीम महाराष्ट्र भिड़ रही थी। केवल 4 अंक लेकर पूल में चौथे पायदान की टीम मणिपुर से मैच 2-1 से फतेह करके महाराष्ट्र की कप्तान प्रियंका ने सेमीफाइनल के लिए अपने मंसूबे बताए। सेमीफाइनल की यही है, उसमें भी अपना 100% दे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। महिलाओं के तीसरे और अंतिम लीग मैच में झारखंड की टीम ने मिजोरम को 4-3 से शिकस्त देकर 10 अंकों के साथ सेमीफाइनल में शानदार प्रवेश किया। कप्तान से हमारी बात हुई। हमारी टीम बहुत ही मेहनत की, फर्स्ट 1 गोल हो गया था, फिर भी हम लोग कसर नहीं छोड़े, बहुत मेहनत किए हम लोग। 4 गोल के फासले से 2 मैच जीतकर पूल ए के 6 अंकों वाली उड़ीसा की पुरुष टीम की भिड़ंत हुई। 1 गोल के फासले से 2 मैच जीतकर 6 अंकों वाली ही पूल ए की पंजाब की पुरुष टीम से दोपहर 12:15 बजे। इस मैच में पंजाब ने 2-1 से मैच जीतकर 9 अंकों के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पंजाब की कप्तानी कर रहे थे हरजीत सिंह। जब सेकंड गोल हुआ तब हमको लगा कि
अब जीत जाएंगे जी, बस जीतने के है सर सेमीफाइनल में। पुरुषों के पूल बी में हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच खेला गया आज का मैच अस्तित्व की लड़ाई थी। जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल में खेलना था। हर वो कौशल अपनाया गया जिससे जीत हासिल हो, लेकिन जादू चला महाराष्ट्र का। हरियाणा को 2-0 से शिकस्त दी। कप्तान सुनील वाल्मीकि ने आकाशवाणी से बात की। प्लान एक ही है कि अभी नेक्स्ट मैच पे फोकस करना है और आज जो बच्चों ने गेम खेला है आई एम सुपर प्राउड ऑफ ऑल माय टीममेट्स। पुरुषों के आखिरी लीग मैच में आज का मैच औपचारिकता बनकर रह गया था। सर्वाधिक 7 अंकों वाली उत्तर प्रदेश की टीम ने महज 1 अंक अर्जित करने वाली तमिलनाडु को 3-1 से पराजित किया। कप्तान थे आमिर अली। अभी तो हम लोग पूल में टॉप किया है और हम लोग भी सोच के भी आए थे सारे मैच जीतेंगे और टॉप करेंगे। टॉप किया है, बहुत खुशी की बात है हमारी टीम। कल विश्राम है। 12 तारीख को महिलाओं के सेमीफाइनल में हरियाणा भिड़ेगी झारखंड से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से। उसी दिन पुरुषों के सेमीफाइनल में पंजाब बनाम उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र के मुकाबले तय हो गए हैं। शिवपुरी बीच ऋषिकेश में आज बीच कबड्डी के मुकाबले जोश और उत्साह से भरे रहे। वहां की स्थिति से हमें अवगत करा रहे हैं सौभाग्य रथ। आज बीच कबड्डी का दूसरा दिन था। पहला मैच आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बीच खेला गया। शुरू से ही दोनों टीमें 1-1 पॉइंट के लिए संघर्ष करते नजर आए। मध्यांतर तक स्कोर था हरियाणा 17, आंध्र 15 और खेल समाप्त होने से बस 15 सेकंड पहले स्कोर था हरियाणा 32, आंध्र 31। आखिरी रेड मिला हरियाणा को और आंध्र के खिलाड़ियों ने संयम और टीम वर्क के उत्कृष्ट प्रदर्शन से रेडर को चित कर दिया और ये मैच 32-32 की बराबरी पे छूटा। मैच के बाद आंध्र प्रदेश के कोच जितेंद्र सिंह महिला। सर आज दोनों टीमें बहुत अच्छी थी। हरियाणा इज ए वेरी गुड टीम जिसमें प्रो कबड्डी के काफी प्लेयर खेल रहे थे, बट आंध्रा टीम बीच कबड्डी टीम इज वेरी गुड टीम। हम सोच रखा था जो कम गलती करेगा वही टीम जीतेगी। दोनों बेस्ट टीम है, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस कर रखी थी। कभी मैच अप डाउन बहुत चला मैच, लेकिन लास्ट में मैंने टाइम आउट लेके यही कहा बेटा डिफेंस रखो, डिफेंस अगर हम सक्सेस हो गए तो हम बराबर हो जाएंगे। लास्ट सेकंड में हम ऊपर वाले की मर्जी से हम मैच बराबर हो गया। दूसरे मैच में उत्तराखंड ने शक्तिशाली महाराष्ट्र को महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हराकर सेमीफाइनल के लिए रास्ता तय किया। यह है उत्तराखंड महिला टीम की कोच तनु चौधरी। मैं यहाँ पे 3 महीने से कोचिंग दे रही हूँ लड़कियों को। अभी हमारी कोचिंग का भगवान ने अच्छा रिजल्ट दिया है। टीम मेडल की टीम में एंटर मार गई है। सेमीफाइनल खेलेगी हमारी टीम। भगवान तो आशीर्वाद रहा तो हम गोल्ड भी उठाएंगे। हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उम्मीद से ज्यादा लड़कियां बहुत अच्छा खेली है। सबसे मेन है कि हमारी जो रेडर थी, रेडर बहुत अच्छा चली है। हमारे कॉर्नर दोनों बेस्ट खेले हैं। बीच कबड्डी में टफ तो रहता है बट लड़कियों ने बहुत अच्छा दिया है अपना रिजल्ट। उत्तराखंड महिला टीम की कैप्टन पूजा मेहरा। आज का जो मैच था वो बहुत टफ था और हम पहले से ही हमने सोच रखा था कि हमें जीतना है और मेडल के उसमें आना है, क्योंकि जो हमारा कल का मैच है वो थोड़ा टफ हो सकता है। इसलिए हमने पहले से ही सोच के रखा था कि हमें ये मैच निकालना ही है। पुरुष वर्ग में पूल ए में राजस्थान और पूल बी में उत्तर प्रदेश की टीमें अपनी अपनी मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए और एक कदम आगे बढ़ गए। महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा टीम अव्वल रही। हल्द्वानी में चल रहे मॉडर्न पेंथलॉन के मुकाबलों में कौन टिका रहा, किसकी ऊर्जा पड़ी भारी, बता रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद। The biathlon competition was held today in the modern pentathlon event at the Manaskan Tarantal in Haldwani. The individual competition featured 1600 meter run, 200 meter swim and 1600 meter run. Rama Sankar of Madhya Pradesh won the gold in the women's individual competition. तैयारी तो मैंने बहुत अच्छी की थी पर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ अभी 2-3 महीने पहले। उसके बाद मैंने आयरन मैन किया। आज इवेंट के पहले 2 दिन पहले मेरी बहुत तबीयत भी खराब, बहुत फीवर था। फिर भी मैंने सोचा मेरे को करना है। मैंने क्योंकि कमिटमेंट किया था मेरे को गोल्ड देना है, गोल्ड आएगा मेरा। मैं बहुत खुश हूँ। बस थोड़ा सा है कि टाइम नहीं आ पाया अच्छा। पहले मैंने और बेटर सोचा था टाइम और अच्छा आने के लिए बस। Dipti Kalmek of Maharashtra won silver and Bhargavi Rawat of Uttarakhand won the bronze. In the men's individual competition, Rai Group Suryansh Mohapatra of Odisha clinched the gold. This is my first National Games gold. I have worked a lot hard these years and I'm very proud that I have given my best. So I was thinking that I would get the silver. Means I was hoping and I worked even my heart and with me God was there and finally I got the gold and I'm very happy. Pranab Das made it 1-2 for Odisha by winning the silver, while Prem Kishore Mahato of Jharkhand won bronze. It was Madhya Pradesh's day to shine in the team events, winning both men and women's team gold. Madhya Pradesh women's team member Manvi Srivastava. We have been practicing more than a month and काफी hard work किया है हमने and like you can see the result here. So yeah. Uttarakhand and Jharkhand won silver and bronze in the women's team events, while Odisha and Uttarakhand came second and third in the men's team event. In the mixed relay event, which featured 2 rounds of 800 meter run, 100 meter swim and 800 meter run, Maharashtra's pair of Dipti and Saurabh won the gold. This has to be my chance to prove myself and this is gold for our state Maharashtra. Jai Maharashtra.
I feel proud and I'm very happy. यकीन ही नहीं हो रहा मुझे. Rama and Aditya of Madhya Pradesh won silver, while Forum and Om Kadam of Gujarat won the bronze. आज से ही हरिद्वार में कुश्ती के मुकाबले शुरू हुए। किसने कौन से दांव लगाए और किसने किसको चित किया, रिपोर्ट के साथ राजीव रंजन तिवारी। योगास्थली खेल परिसर रोशनाबाद हरिद्वार में आज रेसलिंग के मुकाबले सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुए। आज कुल 6 अलग अलग भार वर्ग के एलिमिनेशन राउंड, क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स खेले गए। ग्रीको रोमन 87 किलो भार वर्ग में जहां सर्विसेज के सुशांत फाइनल में पहुंचे, तो वहीं हरियाणा के सुनील भी फाइनल का टिकट कटाने में सफल हुए। हरियाणा के सुनील: मैं बड़ा खुश हूँ फाइनल में जाके और कल फाइनल के लिए पूरे अपना 100% देना। वहीं ग्रीको रोमन 67 किलो भार वर्ग में सर्विसेज के विनायक तो हरियाणा के अनिल कल होने वाले फाइनल में भिड़ेंगे। हमने विनायक और अनिल दोनों से कल के मुकाबले पर बातें की। अभी फिलहाल तो वेट कम करना है सर, और बहुत खुशी हो रही है कि फाइनल में गया हूँ मैं। अभी कंटिन्यू तीसरा साल है मेरा जो नेशनल गेम्स खेल रहा हूँ मैं, और बहुत खुशी हो रही है कि फाइनल में जाए। बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, फर्स्ट आने की पूरा कोशिश करूंगा। फ्री स्टाइल के 57 किलो भार वर्ग के भी फाइनलिस्ट आज तय हो गए। कल होने वाला फाइनल सर्विसेज के शुभम और हरियाणा के सुमित के बीच होगा। तो वहीं फ्री स्टाइल 97 किलो भार वर्ग में कल फाइनल में पंजाब के साहिल और दिल्ली के दीपक आपस में गोल्ड के लिए दो हाथ करेंगे। आज के मुकाबलों के बाद साहिल: तैयारी अच्छी है, गोल्ड ही आएगा, पक्का गोल्ड आएगा। फीलिंग कैसी है, क्योंकि फाइनल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है राष्ट्रीय खेलों का? नहीं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार मैं फाइनल हार गया, तो इस बार उम्मीद है गोल्ड आए। वहीं महिलाओं के भी 2 कैटेगरी के मुकाबले आज हुए। 50 किलो भार वर्ग में जहां उत्तर प्रदेश की चंचल ने फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने भी फाइनल का रास्ता तय किया। मुकाबले के बाद चंचल: फाइनल के लिए खुशी तो बहुत है, क्योंकि मतलब मैंने नेशनल तो बहुत खेले हैं, लेकिन मैं फाइनल में फर्स्ट टाइम पहुंची हूँ। और महिलाओं का 62 किलो भार वर्ग का फाइनल मुकाबला भी कल हरियाणा की कल्पना और महाराष्ट्र की भाग्यश्री के बीच खेला जाएगा। मुकाबलों के बाद भाग्यश्री: बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनल में गई आज सेमीफाइनल लड़के, और कल की तैयारी भी अभी वजन घटाना है, फिर कल रिकवरी करेंगे, फिर शाम को बाउट लड़ेंगे। कल भी रेसलिंग के मैट पर दमदार मुकाबले जारी रहेंगे। मानसखंड खेल परिसर हल्द्वानी में जमकर फेंसिंग के खेल में तलवारें चली, लेकिन निशाना प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पदक थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं तलवारबाजी की। किसने कितनी चपलता दिखाई और किसके पैतरों में दम था, जानते हैं नीतीश अरोड़ा से। फेंसिंग प्रतियोगिता में आज 2 स्वर्ण पदकों का फैसला होना था, मेंस इपी और विमेन्स फॉइल का। राष्ट्रीय खेल हमेशा ही नए नए चैंपियंस को सामने लाते हैं। मेंस इपी राउंड ऑफ 16 में एक बड़ा उलटफेर उस समय हुआ जब जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाके रामबन के छोटे से गाँव के वहीद सूफिया ने, जिनकी रैंकिंग 14 है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इंडिया रैंक 3 प्लेयर पंजाब के उदयवीर सिंह को 15-13 से हरा दिया। वहीद सूफिया: अच्छा है, ईपी में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, तो उसका फायदा लेते हुए और अपना बेस्ट देते हुए आज मैं जीत गया मैच। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले अन्य खिलाड़ियों में 3 खिलाड़ी सर्विसेज के, रॉबर्ट, पंकज और टॉप सीडेड जेटले, तीनों ही सेमीफाइनल में भी पहुंच गए। भारत के टॉप सीडेड एपी फेंसर जेटले: पता था, क्योंकि ओपोनेंट मैं पहले काफी खेल चुका हूँ उसके साथ। आगे ओलंपिक और एशियन गेम्स आने में मेरे पार्टिसिपेट और मेडल लेने के लिए मैं प्रैक्टिस में हूँ अभी। वहाँ सर्विसेज के ही रॉबर्ट के हौसले भी बुलंद हैं। गोल्ड के लिए कोशिश करूंगा मैं। वहीं महिलाओं की फॉइल प्रतियोगिता में टॉप रैंक फेंसर मणिपुर की सोनिया वैकम भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। मणिपुर की मीना ने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। वहीं तमिलनाडु की 3 फेंसर्स कंगलक्ष्मी, अशिता जॉयस और जेनिशा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आकाशवाणी से बात करते हुए जेनिशा: मेरे से भी बहुत अच्छी प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, तो उसके साथ भी खेलना ये भी अच्छा फीलिंग था, पर मेडल एंट्री तो अलग फीलिंग आ जाएगा। चंडीगढ़ से नेतम, पंजाब से जैस्मिन कौर और हरियाणा से कनुप्रिया भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मेंस ईपी में सर्विसेज के 3 खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक कंफर्म कर चुके हैं और चौथे खिलाड़ी जम्मू व कश्मीर के वहीद सूफिया। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी अपनी जी। कल से कोटी कॉलोनी टेहरी में कियाकिंग के मुकाबले शुरू होंगे। रिपोर्ट के साथ दिलीप झा। कल 11 फरवरी से टिहरी की शांत झील में एक बार फिर से हलचल होने वाली है। कुल 10 इवेंट होने हैं, जिसमें महिला और पुरुष वर्गों में 80-80 यानी कुल 160 एथलीट भाग लेंगे। कुल पदकों की संख्या 78 है, 26 स्वर्ण, 26 रजत और 26 कांस्य पदक।
शिवालिक हॉल रुद्रपुर में हैंडबॉल के सेमीफाइनल आज खेले गए। रिपोर्ट के साथ श्री कृष्ण। पहला महिलाओं का सेमीफाइनल हरियाणा और राजस्थान के बीच खेला गया। फर्स्ट हाफ में ही हरियाणा 18-7 से आगे चल रही थी। शानदार ड्रिबलिंग, शूटिंग और डिफेंस के सहयोग से हरियाणा ने राजस्थान को 32-25 के स्कोर से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। ये है हरियाणा टीम की कैप्टन सुषमा। रणनीति तो सर यही मेन थी कि हमें गोल्ड लेके जाना है, इससे ऊपर कोई वो नहीं था। तो जब लक्ष्य अपना हाई हो तो रणनीति तो अपने आप बनती रहती है सर। और मेन हमारा टारगेट था कि सर हम डिफेंस में फोकस करें। और सेकंड हाफ में पता क्या हुआ सर, थोड़ी सी स्लाइटली चेंजेस की वजह से हमारा सेकंड हाफ में थोड़ा सा, बाकी मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फाइनल में हैं। पुरुषों का पहला सेमीफाइनल सर्विसेज और मध्य प्रदेश के बीच खेला गया। एक अंक के लिए दोनों ही टीमों ने जमकर पसीना बहाया, पर अंतिम लंबी विसल बजने तक सर्विसेज की टीम ने बेहतरी साबित करते हुए 31-28 के स्कोर से मध्य प्रदेश की टीम को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। सर्विसेज से कप्तान सुखबीर सिंह। मैच ऐसे सर, वो भी थोड़ा उनके आउटशूटर थे, उनके अच्छे कन्वर्ट हो गए, इसलिए थोड़ा मैच खिंच गया था थोड़ा। महिलाओं का दूसरा सेमीफाइनल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की टीमों के बीच हुआ। हिमाचल प्रदेश की लड़कियों ने अच्छी ड्रिबलिंग और शानदार अटैक के जरिए लगभग एक तरफा मुकाबले में दिल्ली की टीम को 40-16 के स्कोर से पराजित किया। हिमाचल प्रदेश की कप्तान मेनका। मन में तो यही चल रहा है सर कि कब जैसे हम लोग गोल्ड मेडल पहने। फाइनल हरियाणा से है, टफ मैच है। क्या रणनीति बनाई है अभी आप? रणनीति का तो सर क्या कह सकते हैं, मतलब हम तो वो मैच भी वन साइडेड ही जीतेंगे ऑफ कोर्स। बस हम लोगों को गोल्ड का इंतजार है कि हम लोग कब अपने घर गोल्ड लेके जाएं। आज का चौथा सेमीफाइनल हरियाणा और उत्तराखंड के बीच खेला गया। एक पॉइंट के लिए दोनों टीमों को जूझना पड़ा। निर्धारित 60 मिनट के बाद स्कोर रहा 29-29। अतिरिक्त समय में हुआ स्कोर हरियाणा 35 और उत्तराखंड 33। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जूडो का रोमांच चरम पर है, जहां खिलाड़ी पदकों के लिए जूझते नजर आए। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं संकल्प मिश्रा। रजत जयंती खेल परिसर के मोनाल हॉल में आज 7 अलग अलग भार वर्ग में पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिगत जूडो स्पर्धा का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में यूपी से आने वाली अस्मिता डे को स्वर्ण पदक मिला, वहीं महाराष्ट्र से आने वाली आकांक्षा शिंदे को रजत पदक हासिल हुआ। संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश की अंतिम यादव और पंजाब की पल्लवी को कांस्य पदक मिला। वहीं महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की श्रद्धा चोपड़े ने स्वर्ण पदक तक का सफर तय किया और गुजरात की महरुके मकवाना ने रजत पदक हासिल किया। मणिपुर की एच मताउलेबी देवी और छत्तीसगढ़ की महक सिंह ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में गुजरात के रोहित मजगूल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा के गर्वित को रजत पदक मिला और दिल्ली के अभिजीत मलिक ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तराखंड के सिद्धार्थ रावत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा के लकी को रजत पदक मिला और हरियाणा के ही अजय और उत्तर प्रदेश के मोनी शर्मा ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक हासिल किया। गोल्ड के लिए पुरुषों की 60 केजी की फाइनल बाउट में हरियाणा के लकी के ऊपर शुरुआती कुछ सेकंड्स में ही 1 पॉइंट की लीड बना लेने के बाद क्या चल रहा था उत्तराखंड के सिद्धार्थ रावत के मन में? क्योंकि मेरा स्कोर काफ़ी जल्दी आ गया था, तो फिर उसके बाद थोड़ा और प्रेशर हो जाता है, क्योंकि 3 मिनट शायद और बचे थे अभी लड़ने के लिए और अपोनेंट भी काफ़ी अच्छा था, तो और वो काफ़ी अच्छा खेलता है प्रेशराइज में। और थोड़ा यही होता है कि स्कोर अगर बहुत जल्दी लग गया तो फिर उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचता है, जो कि एक बहुत प्रेशर हैंडल करना काफ़ी बड़ी चीज़ है। मैच से पहले क्या सोच रही थी 48 किलोग्राम भार वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता उत्तर प्रदेश की अस्मिता डे? मैं हर फाइट में यही सोच के गई हूँ कि मैं ही बेस्ट हूँ और मैं सबको मार के आऊंगी, मतलब जो भी मेरा ओपोनेंट है उसको मार के आऊंगी और जीत के आऊंगी। और जब फाइनल के लिए गई तभी भी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गई और एग्रेसिव गई और मैं यही सोच के गई कि आई एम द बेस्ट और मैं मार के आऊंगी। कोच की सीख कितनी काम आई 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता महाराष्ट्र की श्रद्धा चोपड़े के लिए? मुझे मेरे कोच ने बता रखा था कि पहले अपनी फर्स्ट ग्रिप लेके पहला अटैक खुद का होना चाहिए और कंटिन्यू निवाजा करना है। उसी हिसाब से मैं खेली और मेरा मैच अच्छा रहा। परेड ग्राउंड देहरादून में आज लॉन टेनिस में महिला और पुरुष वर्गों के डबल्स के फाइनल खेले गए। कौन बना विजेता? रिपोर्ट के साथ हैं अनुपम पाठक। टेनिस की व्यक्तिगत स्पर्धाएं अब अपने चरम की ओर बढ़ चली हैं। आज पुरुष और महिला एकल के सेमीफाइनल मैच खेले गए, लेकिन सारा आकर्षण दूसरे सत्र में सेंटर कोर्ट पे सिमट आया, जहां स्वर्ण पदकों के लिए महिला और पुरुष युगल फाइनल मैच खेले गए। किताब और मैदान दोनों के आकलन एक ही निकले। दोनों मैचों में पहली वरीयता वाली जोड़ियों ने ही स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय टीम के सदस्य कर्नाटक के निकी पोनाचा और प्रज्वल देव काफी समय से डबल्स एक साथ खेल रहे हैं। आपसी समझ और तालमेल भरपूर है।
इसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने पहले ही सेट के पहले ही गेम में सर्विसेज के इशहाक इकबाल और फैसल कमर की सर्विस ब्रेक कर दी। पूनाचा की तेज तर्रार सर्विस और प्रज्वल के नेट पे खेले गए शॉट्स सर्विसेज की जोड़ी पर हावी रहे और 6-3 से पहला सेट उन्होंने जीत लिया। दूसरे सेट में भी सर्विसेज के खिलाड़ी संघर्ष का स्तर नहीं उठा सके। मैच बिना ज्यादा प्रतिरोध के पूनाचा और प्रज्वल के हवाले कर दिया। जीत के बाद पहले निकी से पूछा, शॉट्स और सर्विस में इतनी ताकत, कितना जिम करते हैं वो? Quite a few, but not much. I would say, consider nowadays we are mostly playing more tennis and focusing on recovery. But I would say close to 1.5 to 2. प्रज्वल ने जीत का राज यूं बयान किया। We know how they play. We saw how they play last match, and then I knew, okay, this is the play we have to do. And based on our strength, what we could do, we were able to do it very well. So I think that made a difference. दूसरा फाइनल भी पहले मैच की कहानी का रिप्ले था। गुजरात की वैदेही चौधरी और जील देसाई ने सीधे सेटों में महाराष्ट्र की पूजा इगड़े और आकांक्षा नितूरे को 6-3, 6-2 से परास्त कर दिया। मैच के बाद हमने इस जोड़ी से बात की और जील से पूछा कि आज सर्विस में इतने डबल फॉल्ट्स क्यों हो रहे थे। फर्स्ट गेम में डबल फॉल्ट्स हुए मेरे काफ़ी, पर मैंने मैनेज किया कि थोड़ा पेस स्लो करूँ, स्पिन ऐड करूँ, क्योंकि ये बॉल्स बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने फाइनली उसको मैनेज कर लिया। वैदेही ने सच्चे साथी की तरह उनका बचाव किया। समटाइम्स अपने पार्टनर को एक मोटिवेशन देना पड़ता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, कि होता रहता है। तो उस टाइम पे बस एक दूसरे को सपोर्ट करना है और मोटिवेट करना है। गुजरात की लड़कियां टेनिस में बहुत अच्छा कर रही हैं, क्या कहती हैं वैदेही? जो गवर्नमेंट है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं हमें स्पोर्ट्स के लिए, की वजह से हम लोग गेम पे फोकस कर सकते हैं। इशहाक युगल फाइनल में तो हारे, लेकिन सुबह उन्होंने प्रज्वल को ही हराकर एकल मुकाबले के फाइनल में जगह बनाई। लास्ट टाइम मैं यहीं पे टीम इवेंट में सेमीफाइनल में मैं इससे हार गया था प्रज्वल से, तो इस बार इंडिविजुअल इवेंट में सेमीफाइनल में उसको हरा के बहुत अच्छा फील हो रहा है। मजे की बात ये कि महिला एकल में भी वैदेही चौधरी ने आकांक्षा नितूरे को परास्त करके फाइनल में प्रवेश किया और अपने दूसरे स्वर्ण की उम्मीद बनाए रखी। टेबल टेनिस के मुकाबलों में क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट के साथ है मोहम्मद शाहिद आजमी। देहरादून के परेड ग्राउंड मल्टीपर्पज हॉल में टेबल टेनिस के मुकाबले जारी हैं, जहां महिला तथा पुरुष वर्ग के खिताबी मुकाबले आज खेले गए। महिला वर्ग में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की टीमें आमने सामने थी। कड़े संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को 3-1 से मात दी। टीम इवेंट का पहला मैच पश्चिम बंगाल की सुतीर्था मुखर्जी और महाराष्ट्र की स्वास्तिका घोष के बीच हुआ, जिसे सुतीर्था मुखर्जी ने 3-2 से जीत लिया। वहीं दूसरे मैच में महाराष्ट्र की कप्तान दिया चितले ने दिग्गज आहिका मुखर्जी को 3-0 से हराकर अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। लेकिन अगला मैच पोयमंती बैस्या ने 3-1 से जीतकर पश्चिम बंगाल को बढ़त दिला दी। चौथा मैच निर्णायक साबित हुआ जब आहिका मुखर्जी ने महाराष्ट्र की स्वास्तिका घोष को 3-0 से हराकर खिताब पश्चिम बंगाल की झोली में डाल दिया। आहिका कहती हैं, लास्ट मैच में मैं एक्चुअली बहुत फोकस थी फर्स्ट मैच हारने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि मैं टीम के लिए खेल रही हूँ, अपने लिए नहीं। तो मैं टीम के बारे में सोच के मैंने सोचा कि जान लगा देते हैं, क्योंकि अगर मैं जीत गई तो पूरा टीम जीत गई, अगर मैं हार गई तो और एक मैच लंबा चलेगा। यही एक अपॉर्चुनिटी है कि खत्म करने का, तो वही था मेरा प्लान, वही मेरा माइंड में था। अब सुनते हैं खिताबी मुकाबले में 2 मैच जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी को। मैच तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही अच्छा टीम था उनका, हमारा भी बहुत ही अच्छा हुआ मैच और बहुत सब लोगों का एफर्ट था, कोचेस का, प्लेयर्स का, बेंच का। हमारा सीनियर प्लेयर्स है मोहम्मदी, तो वो भी लीजेंड ही है, और उसके बाद बॉन्डिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था टीम का। फिर थर्ड मैच पोयमुंती ने निकाला, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर अहिका ने भी बहुत अच्छा खेला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जीत के। महाराष्ट्र की हार की वजह जानने के लिए हमने उनकी टीम की कप्तान दिया चितले से बात की। वो भी अच्छा ही खेले एंड क्लोज ही था, पहला मैच भी क्लोज था, सभी मैच क्लोज थे एक्चुअली। तो एंड में आई थिंक वो लोग बेटर खेले, और आई मीन एक मैच ही हुआ। मुझे लगता है हम सब अपना बेस्ट दिए, और मतलब एंड में वो लोग भी बेटर खेले हमसे, इसलिए वो जीते। ऐसे नहीं कि हम कुछ कम खेले या वैसे, पर आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम बिकॉज दे प्लेड बेटर टुडे। वहीं पुरुष वर्ग का गोल्ड मेडल पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को हराकर जीता। इससे पूर्व खेले गए महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को 3-0 से और महाराष्ट्र ने हरियाणा को इतने ही अंतर से हराकर खिताबी मुकाबले में भिड़ंत पक्की कर ली थी। आज से महिला तथा पुरुष युगल वर्ग और मिश्रित युगल के भी मुकाबले शुरू हो गए हैं, जहां केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज कर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
आइए एक नजर डालते हैं पदक तालिका पर शौर्य चौधरी के साथ। Services Sports Control Board still topped the medals tally with an impressive 45 gold, 18 silver and 17 bronze for a total of 80 medals. But the race for the second spot has heated up between Maharashtra and Karnataka. Both have 32 gold right now, but Maharashtra have 46 silver to Karnataka's 15 to claim second spot as of now. They have a jaw-dropping 126 medals in total, while the southern state has 66. Haryana with 24 gold and 81 medals are fourth. Madhya Pradesh are fifth with a total of 58 medals. Hosts Uttarakhand are now seventh with a great haul of 77 medals. इस रोमांचक खेल यात्रा का आज का सफर यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और प्रस्तुति सहायक दीपांकर मिश्रा। कल इसी समय 38वें राष्ट्रीय खेलों की दैनिक रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सुनना न भूलें। नमस्कार। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा देहरादून में तैयार किया गया।